سب سے پہلے شامل کریں گے خبر ایکس کنٹرول ہائی سپیڈ ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے، جس کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ پہلے فیز کا 50% جبکہ دوسرے فیز کا 40% کام مکمل کر لیا گیا۔ 6 میں سے 2 انٹرچینجز مکمل کر لیے گئے۔ میگا پروجیکٹ کو اگست 2025 میں عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ احسن عباسی کی رپورٹ۔ ملیر ایکسپریس وے کا ترقیاتی کام تیزی اور پائیداری کے ساتھ جاری ہے۔ پہلے فیز کا 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے فیز کا کام 40% مکمل ہوا ہے۔ منصوبہ ایکسپریس وے کے اطراف زمین کے مسائل متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر دور کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ NHA کی جانب سے ٹول ٹیکس کی رقم کلومیٹر کے حساب سے رکھی جائے گی۔ ایکسس کنٹرول ہائی سپیڈ ملیر ایکسپریس وے کا اسٹرکچر زمین سے 35 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جو پہلے فیز میں مسافروں کو 39 کلومیٹر طویل سفر طے کرائے گا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ اور شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر کا کام 3 ماہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع۔ انڈر پاس کی تعمیر پر 1350 ملین روپے لاگت آئے گی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کا عزم، شہر میں اہم پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع۔ کریم آباد انڈر پاس کراچی اربن موبلٹی پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کا مقصد شہر کے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے۔ کریم آباد انڈر پاس کا پہلا 30 میٹر کانکریٹ اسپیل بچھانے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ کریم آباد انڈر پاس 1 کلومیٹر طویل اور 2 رویا پر مشتمل ہے، جس کی تعمیر پر 1350 ملین روپے لاگت آئے گی۔ شہری اس کی جلد تعمیر کے خواہاں ہیں۔ اس کی تعمیر جلدی مکمل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فنڈ مہیا کریں۔ اگر فنڈ مہیا ہوگا یہ جلدی کمپلیٹ ہوگا تو تاجر ٹیکس دیتے ہیں، تاجر مر رہے ہیں برے طریقے سے، کوئی پریشان حال نہیں ہے تاجروں کا، نہ ہمارے پاس پارکنگ ہے، نہ ہمارا کسٹمر آ سکتا ہے، ہم برے طریقے سے پیچھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ پریشانی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے کسٹمر نہیں آ رہے، مارکیٹ جو ہے بالکل، جو دکاندار ہمارے ہیں وہ پریشان ہے، چونکہ کسٹمر کا نہ تو یہاں پہ ٹریفک کا کوئی ان کو گاڑی پارکنگ کرنے کی کوئی جگہ مل رہی ہے۔ اب بیچارے جیسے تیسے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اس میں دکاندار بھی پریشان ہے ہمارے۔ پروجیکٹ کی تعمیر میں تعطل پر مینا بازار کی محنت کش خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کہتی ہیں انڈر پاس کی تعمیر سے رمضان کا سیزن برباد ہو گیا۔ یہ انڈر بائی پاس بن رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بہت اثر پڑا ہے۔ ایک تو پارکنگ کا مسئلہ ہے، خواتین آ نہیں سکتی اور اتنی دور کھڑا ہونا پڑتا ہے بائک اور گاڑی کو، اور ٹریفک کی وجہ سے بھی ہمیں مسئلہ پڑا ہے۔ اور بائی پاس کے بعد ہمارا کام بالکل ہی سلو ہو چکا ہے۔ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی کاروبار نہیں، دوسرا یہ کہ یہاں جب یہ کھدائی کی ہے ان لوگوں نے، اس سے پارکنگ نہیں ہو رہی، جب پارکنگ نہیں ہو رہی تو کلائنٹ بھی نہیں آ رہا۔ کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ کی مختصر مدت میں سالانہ ترقیاتی فنڈ سے تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تعمیر وقت پر مکمل ہوتی ہے یا مزید وقت مانگا جائے گا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر قائد کے ترقیاتی منصوبے سہولتیں فراہم کرنے لگے۔ شاہراہ نور جہاں قلندریہ چوک سے عبداللہ کالج اور سخی حسن سے واٹر پمپ تک کی سڑک تعمیر ہوئی۔ نئی سڑک تعمیر ہونے سے سفر بھی مختصر ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث پہلے ہی یہ سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ شاہراہ نور جہاں سے نیا ناظم آباد جانے والی سڑک کی کارپیٹنگ کر دی گئی، تاہم منگو پیٹ جانے والے پل کا کام آخری مراحل میں داخل ہے۔ ترقیاتی کام ہوتا دیکھ کر شہری بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ کہتے ہیں قلندری چوک سے نیا ناظم آباد اترنے والا پل مکمل ہونے سے سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ پہلے جی یہ سڑک بہت خراب تھا، بہت پریشانی تھی، لوگوں کو آنے جانے میں مسئلے ہوتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا ہے، اور سیوریج کا نظام بھی بہت اچھا کر دیا ہے۔ پانی وغیرہ جیسے بارش آتی ہے تو وہ نالے میں چلا جاتا ہے، اب بہت بہتر کر دیا ہے۔ پہلے یہ روڈ جو تھا بہت مشکل تھا، یہاں سے جاتے ہیں واٹر پمپ تک تقریباً 20 منٹ کا راستہ ہے، ابھی ماشاءاللہ جو ہے نا 10 منٹ کا راستہ ہے، ابھی بالکل ٹک ٹاک بنا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت روڈ ہے۔ ابھی سہولت تو ماشاءاللہ ہے، پہلے تو ٹوٹا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے کڈوں میں جمپوں میں، ابھی ماشاءاللہ روڈ بہترین بن گیا، اب اچھا ہے، لوگوں کے دل سے بھی دعا نکل رہا ہے جب ایک چیز اچھا ہوتا ہے۔ سخی حسن سے واٹر پمپ تک کا سفر صرف 10 منٹ میں ہونے لگا۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث پہلے ہی یہ سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا۔ واٹر پمپ چورنگی سے راشد مناز روڈ کی سڑک مکمل ہونے پر شہری مطمئن دکھائی دیے۔ بھائی یہ ہے کہ اس سے یہ فائدے ہوئے ہیں کہ گاڑیوں کا عام و ضرب اور یہاں ایکسیڈنٹ وغیرہ بڑے ہوتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ جگہ جو ہے یہ قلندریہ ہے، اور اس جگہ پہ بہت ٹائم سے کام چل رہا ہے، تھوڑا بہت چل رہا ہے مگر ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے۔ یہاں سے بنارس کافی سہولت ہو گئی ہے، ایک تو نالا چھپ گیا ہے، بائک والا بھی سکون سے جا رہا ہے، پیدل جانے والا بھی۔ کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی پر عوام نے بھی سکون کا سانس لیا۔ لوگوں کو امید ہے کہ شہر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی دیگر سڑکوں کی مرمت بھی جلد ہو جائے گی۔ کیمرامین سجاد رئیس اور ساتھی رپورٹر فاران کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔
नाअहली, करप्शन या कुछ और, गुलिस्तान जौहर अंडरपास के 10 माह बाद ही मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया। ये ज़रूरत क्यों पेश आई, ये जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। फलस्तीन के नाम से मंसूब गुलिस्तान जौहर अंडरपास में इफ्तिताह के 10 माह बाद ही नकाइज सामने आ गए। सर ये तो पेवर ब्लॉक को निकाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अनबैलेंस की वजह से ये ख़राब है, कुछ डैमेज है, वो निकाल के चेंज करेंगे और इसका लेवल वगैरह सेट करके इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। 20 से 25 दिन में ये ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद वो 20 से 25 दिन में वो भी इंशाल्लाह वो ट्रैक भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये ट्रैक ऑन कर दिया जाएगा, फिर वो ट्रैक बंद करके 20 से 25 दिन में वो ट्रैक भी ऑन कर दिया जाएगा। शहरी कहते हैं वज़ीर आला के दौरे के दौरान नकाइज सामने आए। अंडरपास के प्योर ब्लॉक्स की नाहमवारी दूर करने के लिए मरम्मत जारी है। और बारिश के बाद जो है ना सारी मिट्टी निकल गई, तो वो ब्लॉक्स वगैरह जो है ना या पानी जो पड़ता है उसकी वजह से ब्लॉक्स निकल गए हैं, तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वज़ीर आला साहब खुद यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जब इसके अंदर जर्क्स महसूस किए तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है ना ऑर्डर दिया वर्किंग। गुलिस्तान जौहर अंडरपास का यूनिवर्सिटी रोड से पहलवान गोट जाने वाला ट्रैक मरम्मती काम के बायस बंद है, जिसका काम मुकम्मल करने में 25 रोज दरकार होंगे। इसके बाद दूसरे ट्रैक पर मरम्मती काम अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के इजलास में बड़े कदम। महकमा एक्साइज का रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम करने का फैसला। महकमा एक्साइज की जानिब से ईद उल अजहा के फौरी बाद प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी की जाएगी। टैक्स हदफ के हुसूल तक अफसरान के हफ्ते और इतवार की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया। टैक्स चोर और मंशियात फरोश अब भाग नहीं सकेंगे, तेज रफ्तार पुलिस पीछा करेगी। हदफ पूरा नहीं किया, रेवेन्यू अफसरान की छुट्टियां भी खत्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। टैक्स चोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए महकमा एक्साइज का रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर का कहना था कि मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से चौकियां भी बनाई जाएंगी। महकमा एक्साइज की जानिब से ईद उल अजहा के फौरी बाद प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का फैसला भी कर लिया गया। इजलास में प्रीमियम नंबर प्लेट्स की फराहमी के लिए SOPs को हतमी शक्ल देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इब्तिदाई तौर पर हर कैटेगरी में 7 प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल का तरीक़ेकार होगा। गलत नंबर प्लेट लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नई और डुप्लीकेट नंबर प्लेट की तैयारी आसान बनाने के लिए मशीनरी नस्ब करने समेत दीगर इक़दाम उठाए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से महकमे के अफसरान को मुख्तलिफ टैक्सेस के टारगेट का हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत। टैक्स हदफ के हुसूल तक अफसरान के हफ्ते और इतवार की छुट्टियां खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया। टैक्सेस से मुतालिक आगाही मुहिम के तौर पर अखबारात में इश्तिहारात भी दिए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। लाइन्स एरिया, जमशेद टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। शहरियों ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। एक तरफ आग बरसाता सूरज तो दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की तवील दौरानिये की लोड शेडिंग। कराची वाले गर्मी से हो गए निढाल। लाइन्स एरिया में 4 रोज बिजली मुनक़ता रहने के बाद बहाल तो कर दी गई, लेकिन लोड शेडिंग का खात्मा ना हुआ। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना था कि पूरा दिन बिजली गायब रहती है, कि इलेक्ट्रिक जुल्म की इंतहा कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। भी रुकने के बाद क्या नाम है 2-2 ढाई घंटे रहती है। सारी रात 12 बजे अब आएगी तो फिर 9 बजे जाएगी, तो फिर क्या नाम है 12 बजे आएगी। 12 बजे के बाद फिर 2 बजे बंद कर देते हैं सारा दिन। फिर सुबह 4 बजे आएगी, 4 बजे आएगी तो 6 बजे बंद कर देंगे। बिलों की अदायगी का जहाँ तक के मसला है, 50 बिल जो है मेरे पास मौजूद हैं। जो 50 बिल जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पेमेंट की हुई है, ये कहते हैं पेमेंट नहीं है। कैसे कहते हैं पेमेंट नहीं है। लाइन्स एरिया में दिन में 4 बार 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 16 घंटे की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुताल्लिका हुकाम से शहरियों ने दरख्वास्त की है कि वो लोड शेडिंग के दौरानिये को कम करें। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अरकान असम्बली भी बेजार हो गए। मामला असम्बली में उठाने का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से परेशान हैं। दही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ अरकान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेने का मुतालबा किया। हमारे साथ असम्बली से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के साथ मौजूद हैं आजिज़ जमाली। जी हाँ, गज़ब की गर्मी है और हीट वेव है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। शहर कराची में घंटों तक बिजली नहीं है और गर्मी में शहरियों का बुरा हाल है।
मैं सिंध असम्बली में कुछ अरकान असम्बली से कुछ वज़रा से लोड शेडिंग, हीट वेव और इस गज़बनाक गर्मी में के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पर बात करता हूँ। बिल नहीं देते तो उसकी सज़ा सबको मिलती है, तो इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो बिल नहीं दे रहा सिर्फ उसकी बिजली ही बंद की जाए, लेकिन दीगर लोग जो इस महंगाई के हालात में भी अपना बिल अदा करते हैं वो इसकी सज़ा क्यों ले। तो इस पे बातचीत उनके साथ हो रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कम। 1 घंटे बिजली आती है तो 2 घंटे बिजली गायब होती है। हम भी इसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, तो बिल्कुल बिजली आनी चाहिए और पूरे टाइम पर के इलेक्ट्रिक को भी ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए कि लोग किस गर्मी में शदीद गर्मी में जो है वो लोग इस तरह का सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो आपका एनर्जी क्राइसिस है और पोस्ट क्लाइमेट चेंज आपकी जैसे आपने खुद कहा कि हीट वेव्स हैं, अनयूजुअल फ्लड्स हैं, कहीं ड्राउट भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको हमें थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पे जाके सोचना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोल्यूशन है जिस पे हमें जाके फोकस करने की ज़रूरत है। कराची में गर्मी की शिद्दत, हीट वेव और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। हमने कुछ वज़रा से, कुछ असम्बली अरकान से बात की है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इस मसले पे उन्होंने वफाकी वज़ीर तवानाई और वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी से भी बात की है, के इलेक्ट्रिक से भी बात की है और इस मसले का हल ढूंढा जा रहा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के साथ मैं आजिज़ जमाली, कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सिंध असम्बली। वज़ीर सेहत सिंध ने सिविल अस्पताल का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। मोर्चरी, आर्थोपैडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर अजरा पिचोहो ने कहा कि स्टोर में QR कोड लगा है, हथियार चोरी नहीं होगी। ड्रग रिएक्शन सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत 2 टावर बनने जा रहे हैं। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर्स भर्ती कर लिए जाएंगे। मीर केरियो की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल में 3 नई तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कर दी गयी। वजीर सेहत ने मोर्चरी, ऑर्थोपैडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुखय्यर हजरात के फंड से 2 टावर तामीर होंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए और इस मास्टर प्लान के तहत जो है 2 टावर्स बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है डोनर्स ने जो है सिविल हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल में अब बेहतरी आ रही है। अस्पताल को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। IV डिलीशन फार्मेसी में अब QR कोड लगा दिया है, जहां से अद्वियात चोरी नहीं होंगी। हमने ये भी देखा कि यहाँ जो मेन स्टोर है उसमें QEC कोड लगा हुआ है, ताकि जो दवाएं चोरी होती हैं उनसे बचा जाए। सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे जो स्टॉक है पूरा उसका स्टॉक का जो है इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल है। वज़ीर सेहत ने खबरदार किया, जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले डॉक्टर्स भर्ती करने का भी ऐलान किया है। महकमा जेल खानाजात के 2 DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोड़ियों से। बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा जेल खानाजात में 2 20 के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसमें तकर्रुर के मुंतज़र साबिक कायम मुकाम IG जेल खानाजात सैयद मुनव्वर अली शाह का तबादला करके उनको DIG जेल खानाजात हैदराबाद, जबकि DIG जेल खानाजात हैदराबाद मोहम्मद नासिर खान का तबादला करके उनको DIG हेडक्वार्टर कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि सैयद मुनव्वर अली शाह काबिल अर्से से जो है तरक्की के तकर्रुर के मुंतज़र थे, क्योंकि उन्होंने को निगरान हुकूमत ने IG जेल खानाजात गैर कानूनी तरीके से फैसला किया था, जिसके बाद काजी नज़ीर अहमद को उन्होंने अदालत से रजू किया, जिसके बाद उनकी तकर्री मुराद अली शाह सरकार ने कैंसिल करके काजी नज़ीर अहमद को जो है IG जेल खानाजात तैनात किया, जिसके बाद जो है ये अफसरान और उनके जोड़ में शामिल थे, लेकिन आज जो हुकूमत ने इनको रजाबंद करके DIG जेल खानाजात हैदराबाद तैनात कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। ताजरों की एहतजाजी तहरीक भी काम न आई। बल्दिया उस्मा कराची मार्केटों का किराया बढ़ाने पर बज़िद। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई कहते हैं कि जून से इजाफी किराए वसूल किए जाएंगे। ऐसा हुआ तो दोबारा एहतजाज करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट।
KMC की मार्केटों के किराए बढ़ने का खदशात, ताजिर एक बार फिर एहतजाज के लिए तैयार। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ जई बोले, ताजिर महंगाई से पहले ही परेशान हैं, इजाफी किरायों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। 75% जो है ये जून के जो भी बिल आ रहे उस पर बढ़ा रहे। हमने मेयर साहब से बड़ी रिक्वेस्टें की, दरख्वास्त की और उनको बताया कि भाई इतने किराए, ये ताजिर इस वक्त कारोबार की हालत आप देखें, मईशत की हालत देखें, मुल्क की हालत देख रहे हैं, तो इसमें ये किराया ये लोग नहीं भर सकते। अब्दुल्ला यूसुफ जई ने दो ठोक कहा, अगर किरायों में इजाफा हुआ तो फिर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हमने एहतजाज भी किया, रोडों पे भी आए, हेड ऑफिस पे भी गए, चैम्बर पे भी आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम गए और वहाँ पे मेयर साहब भी है, उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मामला जूं के तू है। हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन ये किराए कम करके, हमारे किराए कम करके, मुनासिब करके, अगर नहीं किया जाए तो फिर हम मजबूर एहतजाज करेंगे और एहतजाज तहरीक चलाएंगे। ताजिरों ने किरायों में इजाफे के खिलाफ KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया था, जिस पर इंतजामिया ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप ने टिम्बर सेक्टर पर से इंपोर्ट परमिट की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर साबिर मंगश ने कहा कि इंपोर्ट परमिट की शर्त सिर्फ खाने पीने की अशिया पर होती है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पोर्ट पर टिम्बर के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला ताहाल हल न हो सका। टिम्बर मर्चेंट्स ने टिम्बर के सेक्टर पर इंपोर्ट परमिट की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर कराची टिम्बर मर्चेंट्स साबिर बंगश का कहना है कि इंपोर्ट परमिट की शर्त सिर्फ खाने पीने की अशिया पर होती है। हुकूमत टिम्बर सेक्टर से इंपोर्ट परमिट की शर्त खत्म करे। पिछले 70 साल से इंपोर्ट हो रहा है, जो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई कीड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ निकल रही हो, कुछ नहीं है। ये तो खाने पीने की चीज़ों पे लगा जाता है, दालें हो गई, कोई गंदुम हो गया, दूसरा जिस खाने पीने की जो भी चीज़ है आप उसको कर सकते हैं। साबिर बंगश बोले, पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स की वजह से लाखों रुपए ड्यूटी की मद में अदा करने पड़ रहे हैं। किसी भी वक्त कंटेनर्स की क्लियरेंस का इजाजतनामा जारी हो सकता है। एक ना एक मसले मसाइल करके जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़या हो रहा है हमारे ताजिरों का, और ये पैसा जो है ना डेमरेज डिटेंशन की मद में शिपिंग कंपनी मुल्क से बाहर डॉलर की शक्ल में ले जाती है, ना कि मुल्क में लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अभी करके आज वो उसकी जो वो है अप्रूवल किसी टाइम भी आ जाएगी आज, तो कल इंशाल्लाह कंटेनर रिलीज हो जाएंगे। ताजिरों का कहना है कि एहतजाज और हड़ताल करने पर प्लांट एंड प्रोटेक्शन हुकाम ने ताजिरों से मुज़ाकरात भी किए थे। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दरामदी बिल बढ़ने और बरामदात कम होना मुल्की मईशत के लिए बदशगुनी साबित। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदी मार्केट हाथ से निकलने लगी। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि दरामदी बिल बढ़ना माली मुश्किलात पैदा कर देगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। दरामदी बिल बढ़ने और बरामदात कम होना मुल्की मईशत के लिए दुरुस्त नहीं। अप्रैल 23 के मुकाबले अप्रैल 24 में दरामदी बिल 63% बढ़ चुका है। दरामदी बिल अप्रैल 23 के 2 अरब 98 करोड़ डॉलर से अप्रैल 2024 में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर हो चुका है। पाकिस्तान की अप्रैल 2024 में बरामदात 2 अरब 35 करोड़ डॉलर रही है। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि तिजारती खसारा बढ़ना मुल्की मईशत के लिए अच्छा नहीं, जबकि बरामदात में कमी की वजूहात में महंगी पैदावारी लागत है। क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ मुल्क का अवाम है, तो पाकिस्तान को तो मैं हमेशा एक ही लफ्ज में कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन लेके नहीं आएंगे, जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से बरामदात की बड़ी मार्केट हाथ से निकलती जा रही है। महंगी बिजली और गैस और 25% सूद पर कर्जा मिल रहा है। सनतकार कैसे 25% सूद पर माली मुश्किलात कम करे। इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ रहा है कि जो सनतकार हैं उनको बिजली नहीं मिल रही, सनतकारों को जो सूद मिल रहा है वो 25% का मिल रहा है, सनतकारों को गैस नहीं मिल रही। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑलरेडी जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया थे, उनकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी को लेके आगे इसको कंटिन्यू करना नामुमकिन है। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर ने कहा कि हुकूमत को सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करना होगी। इंडस्ट्री ही मुल्क की तरक्की दे सकती है और रोजगार फराहम कर सकती है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 258 पॉइंट्स की कमी 75,084 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में भी 9 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये 54 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपये 70 पैसे। बरतानवी पाउंड 353 रुपये 74 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपये 99 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपये 19 पैसे का हो गया।
ईरान में अलमनाक हेलीकॉप्टर हादसा, ईरानी सदर जाँ बहक। सिंध असम्बली ने ईरानी सदर और उनके साथियों के जाँ बहक होने पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर रिज़ाउल हसन लंजार और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पेश की थी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। ईरानी सदर की अलमनाक मौत, पाकिस्तान दोस्त मुल्क के गम में शरीक। सिंध असेंबली में ताज़ियती करारदाद। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत 1.25 घंटे की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ। कार्रवाई की इब्तिदा में ही वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने कवायद में नरमी करके खुसूसी करारदाद पेश करने की इजाज़त ली और इजलास का एजेंडा बुध तक मौखिर करने की गुजारिश की। Its deepest condolence and sorrow over the tragic helicopter accident. ईवान की मंजूरी के बाद पेश करदा करारदाद में ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि सिंध के अवाम ईरानी अवाम के दुख में शरीक हैं। उनकी शहादत जो हुई है और खुसूसन अभी हमारे उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज रही है। यहाँ पर पाकिस्तान के विजिट पे बहुत थारो जेंटलमैन थे, एक रेस्पेक्टेड उनकी अप्रोच थी और जुडिशल जो बैकग्राउंड है उनसे उनका ताल्लुक था। इसी नोयत की करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने भी पेश की। This House expresses its deepest condolence and sorrow over the tragic helicopter accident that resulted in the loss of Irani President, His Excellency Sayyid Ibrahim Raisi. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करारदाद पर खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में उनको ईरानी सदर की मेहमान नवाजी का शरफ हासिल हुआ था। हमें ईरानी सदर के दौरे कराची पर थ्रेड भी मौसूल हुआ था। ज़्यादा दुख इसलिए है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 23 अप्रैल 2024 को डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब, हुसैन आमिर साहब एक डेलीगेशन के साथ यहाँ पाकिस्तान आए थे और कराची तशरीफ लाए थे और बहुत सालों के बाद कोई हेड ऑफ स्टेट कराची आया था। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि उन्होंने चूज किया। करारदाद पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह समेत पीपल्स पार्टी, MQM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद अज़ां ताज़ियती करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली का इजलास मंगल से पर 3 बजे तक मुलतवी हो गया। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज़ जमाली, कराची। रेलवे इंतज़ामिया डाइनिंग कार की इफ्तिताही तकरीब में रेड कार्पेट समेत ढोल बजाए गए। DS रेलवे नासिर खलीली ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में होने वाले कौमी शोक से लाइल निकले। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में भी लोअर AC क्लास का आगाज कर दिया गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची मोहम्मद नासिर खलीली ने कराची कैंट स्टेशन पर तेजगाम में लगने वाली डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए, रेड कारपेट बिछाया गया और ढोल बाजे भी बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 29 मार्च को एक तकरीब में रेड कारपेट पर बरहमी का इजहार करते हुए पाबंदी का ऐलान किया था। सवाल करने पर DS रेलवे नासिर खलीली ईरानी सदर की शहादत पर मुल्क में होने वाले कौमी शोक के नाम से भी लाइल्म निकले। नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कामों में लगा हुआ था, सेक्रेटरीट में था अपनी मीटिंग्स में, और सीधा इफ्तिताह पे आया हूँ। और ये जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम का सारा एहतमाम किया था और मेरी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को नहीं थी कि मेरे लिए ढोल ढमकों का इंतजाम किया जाए। DS ने मजीद कहा कि तेजगाम एक्सप्रेस में 1107 से ज्यादा मुसाफिर इस रेस्टोरेंट में आकर खाना खा सकते हैं। सिर्फ मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए किया, इसको मुसाफिरों को फ़ायदा कि उनको एक अच्छा खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलेगा, साफ़ सुथरा फूड मिलेगा, इंजॉय करेंगे, कहीं अपने केबिन्स में अपने सीटों में तंग होंगे तो आके यहाँ बैठ जाएंगे, गपशप लगा लेंगे, कोई चाय पी लेंगे, कोई खाना खा लेंगे। तो बेसिकली तो ये उनके लिए है। रेलवे का यही है कि रेलवे ने अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, रेलवे ने अपने पैसेंजर्स को फैसिलिटेशन देना है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर सबा जबीन ने भी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का दौरा करके मुसाफिरों की शिकायत सुनी और मजीद सहूलियात की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, T21। गवर्नर पंजाब ने PTI पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं PTI हमेशा इंतशार की सियासत करती है। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट।
گورنر پنجاب کی مزار قائد آمد سردار سلیم حیدر خان نے بابا قوم کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے. مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب بولے, خان صاحب نے کہا تھا بھارتی وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, پاکستانی سیاستدانوں سے نہیں. مولانا فضل الرحمان محب وطن شہری ہیں, وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان ہو. دیکھیں مولانا صاحب کے تحفظات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ضرور, وہ ایک سینئر لیڈر ہیں اور سینئر پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کے ایک محب وطن شہری بھی ہیں, لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کا نقصان ہو. سندھ کے گورنر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس شہریوں کے لیے کھلا ہے, عوام کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے. دیکھیں بالکل میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ کے گورنر صاحب کو بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور وہ نون لیگ کے کارکن اور پنجاب کی عوام جو وہاں آنا چاہتی تھی وہ کھلے دل سے وہاں آئے. اب بھی روزانہ کی بنیاد پہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو چند دن مجھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ آیا ہو اور اس کی ملاقات ہو. گورنر پنجاب نے مزار قائد پر مہمانوں کی خطاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. کیمرہ مین حسین جعفری کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.